This is the comparison of main three methods for the removal of hardness. That is zeolite process, ion exchange process, and lime soda process. Right? We have gone through each and every process individually, and now this is the comparison. This is the question which can be asked in 5 to 6 marks. That compare all these three hardness removing methods. So zeolite method, ion exchange method, and lime soda method. You have to explain it properly, right? Now you can see the comparison part. See, zeolite, it can give up to 10 ppm. Ion exchange, it can give up to 2 to 5 ppm. And lime soda, yeah, definitely cold lime soda will give you more TDS little bit. And hot lime soda will give you less TDS. That is 50 to 60 in cold lime and 15 to 30 ppm in hot lime soda, right? Zeolite, it is having more pseudo hardness. uh, Ion exchange, there is no sodium salts, and lime soda, lots of insoluble salts are there. Zeolite initial cost is very high because the module is also there. Again, ion exchange is same. It is double than the zeolite, right? It is double than the initial cost जो है आपका is double than zeolite, right? जियोलाइट से थोड़ा डबल है क्योंकि उसमें मॉड्यूल डबल हो जाता है ना। आपका आपका मॉड्यूल डबल हो जाता है। आयन एक्सचेंज में 2 मॉड्यूल आते हैं ना, तो आपके कॉस्टिंग थोड़ी उस हिसाब से बढ़ जाएगी थोड़ी सी, राइट? ओके। ऑपरेशन एक्सपेंस इज लो जियोलाइट में क्योंकि सोडियम क्लोराइड से रीजनरेशन करना होता है। जियोलाइट एक बार ले लिया फिर रीजनरेट कर सकते हैं। वाइल आयन एक्सचेंज में एसिड्स एंड बेस का कॉस्टिंग ज्यादा रहता है थोड़ा सा, राइट? तो उसका थोड़ा सा कॉस्टिंग ज्यादा रहेगा। लाइम सोडा एक्सपेंस इज हाई बिकॉज स्पेशलाइज्ड केमिकल्स आर यूज, कैल्शियम, लाइम, सोडा, कोएगुलेंट दे आर यूज, राइट? ओके, जियोलाइट एसिडिक वाटर के लिए यूज नहीं हो सकता है। Again, it can be used for acidic water, and any type of water can be used in lime soda process, right? Generally, space required is less in zeolite, but double space is required for the ion exchange. Okay. Uh, Lime soda, a very huge, space is required because the big, boilers, type tanks are to be kept there. Then a zeolite can be operated under pressure also for the NaCl regeneration and all. फोन चालू है, जरा बंद करो माइक्रोफोन की। भाई please switch off the microphones, otherwise I have to mute all. Okay, now yes, zeolite has high TDS. Obviously, ion exchange has no TDS, much more, because almost all the ions are removed. It is not no TDS, I will say. It's, we can say, less TDS, right? It is less TDS. Then uh, obviously lime soda process has very high TDS. Again, it zeolite cannot remove negative ion, while ion exchange can remove both negative as well as positive. And again, lime soda also, it is removing the positive ions generally because negative ions are there as a pseudo hardness. Less skilled person is required again in both the cases, while in the case of lime soda, high skilled person is required because everything you have to add calculated. Remember,
आपको लाइम सोडा भी कैलकुलेटेड वे में डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो खुद की अपनी हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा, राइट। अगर मैंने लाइम ज्यादा डाल दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बन गया, डल डल दिया, तो वो अपनी खुद की हार्डनेस प्रोड्यूस कर देगा। सो देयर इज अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपके पूछ सकते हैं कि व्हाई वी हैव टू ऐड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा इन प्रोसेस। तो उसका आंसर यही है, ठीक है। ओके, देन जियोलाइट में कोई पीपीटी नहीं बनता है, सेम वे आयन एक्सचेंज में नो पीपीटीज आर देयर, बट इन द केस ऑफ lime soda definitely sludge formation is there. टर्बिड वाटर आयन एक्सचेंज और दोनों में यूज नहीं हो सकता है। दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स, राइट। टर्बिड वाटर कैन बी यूज्ड इन लाइम सोडा प्रोसेस, एंड इसका अदर नाम है परम्यूटेड प्रोसेस, इसका अदर नाम है डिमिनरलाइजेशन प्रोसेस, और इसका अदर नेम इज द प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, राइट। So this is a whole 12-13 points which you can write in any answer of comparison methods, correct? So now we are moving for the new part of this chapter. Basically this part is in a self study part. Remember, आपका ये पार्ट जो है वो सेल्फ स्टडी पार्ट में है, और ये पार्ट जो है आपका खुद करना होता है, बट मुझे ऐसा लगा कि आप लोग को एक बार एटलीस्ट करवा दें तो आप लोग अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि इसकी थोड़ी जो बुक की टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी लिटिल बिट डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी है, कभी कभी बच्चे बोलते हैं समझ में नहीं आती है। तो वंस यू विल अंडरस्टैंड देन यू विल रीड द बुक, you will be able to understand, right? So the first part is the drinking water specification as per Bureau of Indian Standard, BIS बोलते हैं जिसको, हर बार या सेल्फ स्टडी एग्जाम में आती है, राइट। सेल्फ स्टडी पार्ट एग्जाम में आता है, करेक्ट। व्हाट इज ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन? BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आई थिंक सब लोगों को पता होगा कि हर चीज का वो स्टैंडर्डाइजेशन करता है, मतलब कि हर चीज कैसी होनी चाहिए, कैसे लोगों को देनी चाहिए, बाय कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड रिगार्डिंग द हेल्थ इश्यूज, राइट। तो हेल्थ पार्ट को लेके वो सारी चीजों को ये करता है। नाउ देर आर टू पॉसिबिलिटीज, वन इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड लिमिट, जिसको बोलते हैं हम डिजायर्ड लिमिट और रिक्वायर्ड लिमिट, और एक होती है कि भाई अब वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो अब क्या करें। मुझे मर्सिडीज तो लेनी है, मतलब गाड़ी लेनी है, मर्सिडीज लेनी है, लेकिन मर्सिडीज के लिए 50 लाख नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूं, राइट। मर्सिडीज के लिए नहीं है मेरे पास 50 लाख, तो मैं क्या करूं। तो बोला ठीक है, कितने हैं आपके पास? तो बोला 20-25 लाख ही है, तो कोई बात नहीं, दो चीजें कर सकते हो, या तो सेकंड हैंड मर्सिडीज ले लो, या तो कोई थोड़ी हाई क्वालिटी की मर्सिडीज के अलावा दूसरी कोई कार ले लो, राइट, थोड़ी हाई रेंज वाली कार ले लो, ऐसी चीजें हैं, राइट। सो देर आर टू टाइप्स और देर आर टू केसेस। वन इज कॉल्ड द डिजायर्ड लिमिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन। इट मीन्स आपका स्पेसिफिकेशन इतना होना चाहिए, कोई भी पानी पीने का है, पानी का जो है पीने का, उसका स्पेसिफिकेशन इतना होना चाहिए। ओके, अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर ये स्पेसिफिकेशन वाला पानी नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूं। तो बोला ठीक है, थोड़ा सा ढील ले लेंगे हम, छूट छाट दे देंगे हम लोग कि भाई उतना नहीं है तो इतना चल जाएगा, राइट। सो फर्स्ट, इसमें ये दो टेबल्स हैं, मतलब पूरा टेबल एक ही है, इसको दो पार्ट में किया हुआ है, राइट। तो ये सारी लिमिट्स जो है वो सब कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन मेन मेन जो लिमिट्स आपको आनी चाहिए, जैसे कि एक हमने बोला था शुरुआत में, समझा था कि कलर कलर एक ऐसी चीज है, कलर वाला पानी हम नहीं पीते हैं कभी भी, राइट। बेसिकली इट इज बीइंग मेजर्ड इन हेजिस यूनिट, HAZES, हेजिस यूनिट में हम करते हैं, ठीक है। तो
वो एक एक यूनिट है, वो कलर इंडस्ट्री का या पानी का चेक करने का एक यूनिट है, उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूनिट में डाल के आप देख सकते हैं। एंड दैट शुड बी 5 हेजिस। 5 हेजिस वाला पानी है या तो उससे कम वाला है तो पी सकते हैं, लेकिन 5 से ऊपर वाला है तो नहीं पीते हैं। लेकिन सर अभी हमारे पास वो अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, तो फिर मैक्सिमम 25 हेजिस वाला पानी, देखिए, इन एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स, कोई दूसरा सोर्स नहीं मिल रहा है तो ठीक है, क्या करें, पी लेते हैं, राइट। जैसे कभी कभी हम कोई गांव में जाते हैं, कोई जगह पर जाते हैं, कोई ऐसी जगह जहां थोड़ा सा सॉल्टी वाटर आता है, थोड़ा पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो क्या करते हैं? नहीं पीते पानी, नहीं, अब 1-2 दिन के लिए चलाना है तो चला लेंगे, ठीक है, फाइन, राइट। इट इज नॉट ऑन द परमानेंट बेसिस, रिमेंबर, ये चीज को ध्यान रखिएगा, राइट। ऑर्डर, इट इज, देर इज नथिंग, नो क्राइटेरिया, अनऑब्जेक्शनेबल, मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं पी लूंगा, कोई पानी में मुझे स्मेल नहीं आ रही तो मैं पी लूंगा, आ रही है तो मैं नहीं पीऊंगा, इट इज दैट। टेस्ट, इट इज अगेन एग्रीएबल, मतलब आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो मत पीजिए, राइट। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी इज बेसिकली मेजर्ड इन एनटीयू। एनटीयू का मतलब होता है नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट इसको बोलते हैं, राइट। मैक्सिमम 5 तक होना चाहिए या तो उससे कम होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा टर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए, बट इफ इट इज नॉट देयर यू कैन गो अप टू 10। 10 से ऊपर का नहीं पी सकते, कोई कंडीशन में नहीं पी सकते, नहीं तो आपको हार्म होगा, राइट। पीएच जो है वो 6.5 से 8 होता है, 8.5 होता है, लेकिन जनरली वी प्रेफर पीएच बिटवीन 6.5 to 8, राइट। उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं 10 पीएच वाला पानी पी लेता हूं, नो, नॉट नॉट अलाउड, राइट। ओके, हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? तो हार्डनेस आपकी होनी चाहिए कितनी? 300 ppm is the highest hardness. It is again, it is recommended by WHO also, right? कि रेगुलर यूज में 300 ppm के ऊपर हार्डनेस नहीं होनी। 300 इज हमारे इवन क्राइटेरिया में 300 हार्ड वाटर बोला जाता है, एंड मोर देन 300 दैट इज वेरी हार्ड वाटर, राइट। अगर लेकिन मैं 2 दिन बाहर गया लेकिन वहां तो बहुत हार्ड पानी आता है यार, क्या करूं मैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है, मिनरल वाटर की बोतल नहीं मिल रही है, तो क्या कर सकते हैं? सो इन दैट केस यू कैन गो अप टू 600 ppm, बट 600 ppm से ऊपर का पानी नहीं पीना चाहिए, राइट। आयन 0.3 milligram per liter, that is ppm, and maximum you can go up to 1 milligram, 1 ppm. क्लोराइड, क्लोराइड HCl 250 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा है तो 1000 ppm तक पी सकते हैं। आपको पता है ज्यादा क्लोरीन वाला पानी पीने से क्या होता है? आइडिया है कुछ? ज्यादा क्लोरीन वाला पानी पीने से क्या होता है? देखो, आपका जो हार्डनेस का लिमिट है वो जनरली 100 to 150 होता है, इतना पी सकते हो आप, 100 इज इनफ, टीडीएस इज 150, राइट। हार्डनेस 100 से थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, राइट। लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट है, और अगर फिर भी कंडीशन में नहीं है आपके तो 600 इज द लास्ट डेडलाइन, उसके ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। क्लोराइड, क्लोराइड 250 ppm है, और ये 1000 ppm इज मैक्सिमम। अच्छा, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन मतलब के प्योर फ्री गैस, वो 0.2 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्लोराइड कितना होना चाहिए पता है? अच्छा, क्लोराइड ज्यादा होगा तो क्या होगा? सोचो कि मैंने 1000 ppm वाला पानी पी लिया तो मुझे क्या पॉसिबल हो सकता है? एनीवन, कुछ आइडिया है? एनी आइडिया अबाउट दिस? यस, आई प्रॉब्लम, फिर दूसरा एसिडिटी प्रॉब्लम हो सकता है आपका, बॉडी में फ्री क्लोराइड जाके HCl बना सकता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो, बहुत ज्यादा एसिडिक पानी अगर आपने पिया ना तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। सो ये सारे जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन डिजॉल्व सॉलिड, दिस इज नथिंग बट TDS, ये TDS है,
500 ppm मैक्सिमम होना चाहिए. जनरली 150 पौने 200 इट्स ओके. 500 हाईएस्ट लिमिट, बट इफ इट इज नॉट देयर 2000 ppm अप टू जा सकते हैं. मैंने पहले भी बताया, ये जो है आपका लिमिट in the absence of alternative resources or sources, it is on temporary basis. इट्स नॉट कि मैं तो रोज यही पीऊंगा, नहीं चलेगा ये. ठीक है. कैल्शियम 75 ppm और मैक्सिमम 200 ppm. फिर फ्लोराइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी सारे हैं, नाइट्रेट, मैग्नीशियम, ये सारे हैं, लेकिन फ्लोराइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लोरेसिस हो जाता है आपको, राइट. सो 1.5 इज अ मैक्सिमम लिमिट. एक्चुअली आप लोग ने जब पढ़ा था तो शायद 1 ppm पढ़ा था 11th में, राइट. फ्लोराइड 1 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट मैक्सिमम 1.5. और कुछ भी नहीं है, एक आध दिन के लिए मुझे थोड़ा फ्लोराइड वाला पानी पीना होता है, तो 1.9 और 2 ppm मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, राइट. ऐसे बहुत सारी चीजें यहां दी हुई है. पेस्टिसाइड्स, इट शुड बी एब्सेंट. देयर इज नो रिलैक्सेशन लिमिट. इट शुड बी 100% एब्सेंट. बट अगर नहीं कुछ मिल रहा है तो हम 0.001 ppm तक ले सकते हैं, जबकि हम लोग आजकल तो बहुत पीते हैं, खाते पीते हैं, क्योंकि हर फ्रूट्स, हर वेजिटेबल्स, हर एग्रीकल्चरल ग्रेन्स में ये सारी चीजें आती है. एंड दिस इज द रीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कैंसर. आजकल जो कैंसर हो रहे हैं ना लोगों को, पहले के जमाने में क्या था, कैंसर जो था वो कभी कभी सुनने को मिलता था, कभी किसी को हो गया. और मतलब आजकल ऐसा है कि हर एक के घर में कोई ना कोई कैंसर पेशेंट किसी न किसी ने देखा ही होगा, राइट. Alkalinity, we have done this practical also. So alkalinity, it should be less than 200 ppm. बट अगर कुछ भी नहीं है तो 600 ppm तक मैक्सिमम जा सकते हो. ये भी बहुत हाई लिमिट है. Again, I am repeating again and again that these limits, relaxation limits, are only for the temporary basis. COD, ये जो मैं टिक किए हुए ना जो, वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ. लेड है, फिर साइनाइड तो हम करते नहीं, आर्सेनिक, लेड, ये सारे हैवी मेटल्स में आते हैं. तो ये सारे 0.1 0.05 ppm में जाते हैं और कोई रिलैक्सेशन लिमिट नहीं मिलती है इसमें, राइट. ओके. देन COD एंड BOD. COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो दोनों का 4 लिमिट है, COD का, और उसका 5 लिमिट है, जबकि मैक्सिमम 10 और 6 तक जा सकते हैं. These are the limits based on the Bureau of Indian Standard 10,500. आजकल इससे भी ऊपर का नया वर्जन भी आया है शायद, राइट. तो वो भी शायद हो सकता है इससे ज्यादा स्ट्रेंजेंट हो, पॉसिबल है. ठीक है. तो ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो स्पेसिफिकेशन है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है. पूरा नहीं, लेकिन ऐसा ही कि अगर मेरा जो पीएच है, पीएच का वैल्यू एज पर BIS क्या होगा इफ डिजायर्ड लिमिट इज नॉट अवेलेबल. तो आपको सीधा लिखना है नो रिलैक्सेशन, बिकॉज एज पर द डिजायर्ड लिमिट इज 6.5 से 8.5. और अगर आपका 8.5 के ऊपर है या तो नीचे है तो वो पानी पी नहीं सकते आप. बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा वो पानी, या तो बहुत ज्यादा अल्कलाइन वाटर हो जाएगा. ओके. अच्छा, यहाँ ये पूरा ये टेबल समझ में आ गया पूरा आपको BIS का? हेलो, एम आई ऑडिबल? आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाईज. Yes, sir. कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा है आज, पता नहीं सब नींद में आए हैं या. ओके. सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक which I will cover is boiler feed water and its treatment. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बॉयलर फीड वाटर है क्या और उसकी ट्रीटमेंट क्या है. नाउ दिस पार्ट बेसिकली इट इज फ्रॉम याद आ रहा है हमने कहीं शुरुआत में यहां पर ये किया था. इट इज एन इंटरनल ट्रीटमेंट. बॉयलर फीड वाटर ट्रीटमेंट हमने अभी तक जितना भी देखा वो सारे एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स थे.
हम पहले इसको ट्रीट करते हैं पानी को, उसके बाद हम पानी पीते हैं या तो यूज में लेते हैं, राइट। ये जो है इंटरनल ट्रीटमेंट है। जैसे कि बॉयलर का पानी, बॉयलर में आपको, अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि बॉयलर का यूज कहाँ होता है और कैसे होता है, क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ बॉयलर? सब लोगों को पता होना चाहिए यार। यस, बताइए। लिखने से सर बेटर है माइक्रोफोन यूज करिए। या सर वो हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज होता है ना सर बॉयलर को। बॉयलर का यूज हार्डनेस रिमूव करने के लिए होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है? नहीं। सर बॉयलर ही जनरली बॉयलर का यूज क्या क्या जनरेटिंग स्टीम। यस, पावर प्लांट में यूज होता है, करेक्ट। यस, प्रोड्यूस स्टीम, वेपर्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, जिसको पानी की वेपर यूज करके उससे टरबाइन चलाए जाते हैं, उसके प्रेशर से ये सारी चीजें होती है, राइट। तो वो बॉयलर्स, वो बॉयलर में एक दिन में मतलब हजारों लीटर पानी बॉईल होता है। अब वो हजारों लीटर पानी को हम आरओ से या छोटे छोटे इलेक्ट्रोडायलिसिस से या तो ऐसे जियोलाइट के छोटे छोटे मॉड्यूल से करेंगे तो कब होगा? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा? तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब कि आपको बॉयलर के अंदर ही वो पानी को ट्रीट कर देना है। मतलब जनरली ये एक टाइप का लाइम सोडा प्रोसेस जैसा ही प्रोसेस है, एक टाइप का। जैसे आपका बॉयलर है, ठीक है, बॉयलर का पानी जो है आपका, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। बॉयलर्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसा मतलब एक 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 बॉयलर की कैपेसिटी हजारों लीटर की होती है, ठीक है। स्टीम बॉयलर्स जो होते हैं वो मतलब बाप रे, आप सोच नहीं सकते हो, एक एक दो दो माले तक के बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, राइट। तो वो बॉयलर्स जो होते हैं उसका जो जनरेशन कैपेसिटी जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और उसमें इतने सारे मैकेनिज्म्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है आपको, राइट। तो आपको उसमें बहुत ज्यादा केयर लेनी पड़ती है चीजों की, बॉयलर्स के आपको बहुत ज्यादा केयर लेनी पड़ती है कि उसमें पहली बात तो ये है कि बॉयलर में पार्ट्स कितने हो सकते हैं ये बता सकता है कोई? बॉयलर में मेजर मेजर हमको पता है कि बॉयलर का मतलब बहुत बड़ा रोल होता है, और बॉयलर इज नॉट अ सिंगल पर्सन ऑपरेटेड प्लांट, वो नहीं है। लेकिन कोई मुझे बता सकता है ये चीज के बॉयलर में क्या क्या होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं सिस्टम में? बर्नर। यस, क्या क्या? बर्नर। नेट हुआ और एक दो लोग एक साथ में मत बोलिए बेटा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। बर्नर मतलब हीटिंग सिस्टम, ओके चलिए। आजकल तो बर्नर यूज नहीं होते हैं, आजकल तो सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम या सोलर सिस्टम यूज होते हैं, ठीक है चलिए, ओके। फिर और क्या होता है? सर इकोनोमाइजर। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब ये है कि आ, जो बोलते हैं ना कि इकोनॉमाइजर और सब, तो मतलब बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज मत करो, बच्चों को इजी समझ में आ जाए ऐसा कुछ वर्ड बताओ। या आई नो बेटा, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। मैं इवापोरेटर जस्ट सर। इवोपरेटर, ठीक है, ओके। और कुछ? और कुछ होता है क्या? देखो, मेजर जो होता है बॉयलर में जनरली इंडस्ट्रियल जो बॉयलर होते हैं उसमें आपको अ, तीन सिस्टम्स होती है। तीन सिस्टम कौन कौन सी? तो पहली सिस्टम होती है आपका इनलेट वाटर, जो कि हम पानी अंदर डाल रहे हैं,
ठीक है। एक सिस्टम आपका इनलेट वाटर है, दूसरा जो सिस्टम है वो है आपका हीटिंग सिस्टम। दूसरा सिस्टम जो है वो आपका हीटिंग सिस्टम होता है, जो अभी बताया बच्ची ने, ठीक है। तो दूसरा जो है वो आपका हीटिंग सिस्टम है, और तीसरा क्या है ये बता सकता है कोई? तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत। क्या क्या? आवाज सुनाई नहीं दी बेटा। ये एक मैंने इमेज लेने के लिए ही निकाला था। देखो ये इमेज मैंने गूगल से ली है। एक होता है आपका इनलेट वाटर, एक होता है हीटिंग सिस्टम, और तीसरा होता है मेकअप वाटर। देखो ऐसे बॉयलर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, हजारों लीटर पानी इसमें आ जाता है, और उसमें फिर पानी में से स्टीम प्रोड्यूस की जाती है, राइट। ये सारी चीजें की जाती है। जस्ट मिनट में कोई एक दूसरा फिगर ले लेता हूँ, क्योंकि दिस कैन प्रोड्यूस सम ये सारी चीजें जो है ये रहती है, क्या बोलते हैं, ये सारी जो चीजें होती है वो सारी मतलब कॉपीराइट वाली होती है ये सब चीजें, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है कभी कभी, कहीं से ले सकते हैं लेकिन। यस, देखो इसका ऐसा मतलब इट इज अ वेरी ह्यूज सिस्टम, इसको आप अकेला आदमी नहीं चला सकता है, इसके लिए आपको काफी लोग चाहिए। दो, एक दो लोग, तीन लोग जब मिलके करेंगे तभी ये प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो भी आपका मतलब ये है कि अ, उसको सॉल्व करने के लिए भी अकेला आदमी नहीं कर सकता है, बहुत बड़ा होता है, ये ह्यूज होता है, राइट। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले तो हम बॉयलर सिस्टम में ये चीजें पढ़ने वाले हैं। बॉयलर फीड वाटर, मेजर प्रॉब्लम्स इन बॉयलर, दैट इज स्केलिंग, बॉयलर कोरोजन, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट एंड फोमिंग एंड प्राइमिंग। आई होप के कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट वर्ड आपके लिए नया नहीं है। हमने ये कहाँ पढ़ा था, याद आ रहा है कहीं पर? अल्कलिनिटी में पढ़ा था, और दूसरा कहाँ पढ़ा था? आयन एक्सचेंज में पढ़ा था, राइट। आयन एक्सचेंज में इफ आई विल रिवर्स द सीक्वेंस of anion and cation exchanger, then it can be possible, right? So this is the boiler part। ये एक बॉयलर है, इसमें आपका एक इनलेट वाटर होता है, और एक ये जो पूरा आपका सिस्टम है, यहां से आपका स्टीम जनरेट होता है तो बाहर निकलता है। मतलब इट डिपेंड्स कि वो तो डिजाइन कैसी की गई है, बट जनरली बॉयलर वाटर जो होता है, बॉयलर होता है वो एक डिवाइस है फॉर जनरेटिंग स्टीम। उसमें मेजरली दो पार्ट होते हैं, एक फर्नेस और बॉयलर प्रॉपर, ठीक है। बट उसमें भी बेसिकली सी फर्नेस प्रोवाइड्स हीट यूजुअली बाय बर्निंग फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी, फाइन, बर्निंग फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी। बॉयलर प्रॉपर अ डिवाइस इन विच द हीट चेंजेस वाटर इनटू स्टीम। ये सारी चीजें आपको पता है। और स्टीम और हॉट फ्लूइड इज देन रीसर्कुलेटेड आउट ऑफ द बॉयलर फॉर यूज ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन हीटिंग एप्लीकेशंस। तो जनरली बॉयलर का यूज इंडस्ट्री में होता है, टरबाइन चलाने के लिए यूज होता है। कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम लिखते हैं ना वाटर वेपर यूज करना है, तो उसके लिए यूज होता है। इंडस्ट्री लेवल पे वाटर वेपर बहुत चाहिए, प्रेशराइज वाटर वेपर चाहिए, ये सारी चीजों के लिए बॉयलर का यूज होता है, ठीक है। अब बॉयलर में मैंने बोला था कि बेसिकली आपका जो पानी होता है, अच्छा, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि बॉयलर में बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक होता है फर्नेस, फर्नेस मतलब हीटिंग, हीटिंग पार्ट, हीटिंग एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं, और बॉयलर खुद। तो आपका जो पार्ट है वो है क्या? इट इज वाटर। तो इसमें अगर हम देखें तो वाटर इज अ सिस्टम,
अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में बात करते हैं तो वाटर इज अ सिस्टम इन विच फॉर विच वी विल बी एक्चुअली या न्यूक्लियर प्लांट में भी यूज होता है आलोक, यस यू आर राइट. सो इन विच वी आर गोइंग फॉर टू टाइप्स ऑफ वाटर. बॉयलर में दो टाइप का पानी अंदर जाता है. कौन सा पानी? एक होता है कि आपका फ्रेश वाटर जो हम डालते हैं, जिसको हम स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, राइट. एंड सेकेंड पार्ट इज योर रिकवर्ड वाटर, कंडेंस्ड वाटर. वी नो that 100% oil vapors will not go out by the pipelines or whatever the outlets. So some of the part of that those vapors, they will get condensed again, then water will be formed, right? So एक तरफ से हम पानी डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से हम वेपर निकाल रहे हैं, तो यस पानी का लेवल कम होता जाएगा, आपको उसको मेकअप करना पड़ेगा. बट इन द केस ऐसा नहीं है कि मेरा 1 मिनट में 50 लीटर पानी बॉईल हो रहा है तो मेरा 1 मिनट के अंदर 50 लीटर वेपर बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, राइट. समझ में आ रहा है? तो मेरा क्या होगा, हर मिनट पे मैं 1 मिनट के अंदर बाद 50-50 लीटर पानी डालता जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है. ध्यान रखो ये चीज को. क्यों? क्योंकि आपका कुछ पानी वेपर्स में से कन्वर्ट होके वापस आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिकवर्ड वाटर, रिकवर्ड कंडेंस्ड वाटर, ये बोलते हैं हम लोग, राइट. तो ये चीज जो है इसको ध्यान में रखनी पड़ती है. कौन से टाइम पे? when we are again filling the boiler or when we are continuously filling the boiler with water, or after some time, whatever you choose, right, that time you have to keep it in mind कि मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा 50 लीटर हर मिनट में बॉईल हो रहा है तो 50 लीटर का वेपर जा रहा है, मे बी 30-40 लीटर ही जा रहा है, 10 लीटर वापस आ रहा है पानी, तो मुझे हर मिनट पे, दिस इज एन एग्जाम्पल, राइट. ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. इन दैट केस यू कैन नॉट ऐड, यू नो, डाल दिया हमने 50 लीटर डाल दिया, क्यों बोला, हमने तो निकाला था 50 लीटर बॉईल हो रहा है तो 50 लीटर उड़ गया होगा, अभी 50 हमने डाल दिया, ऐसा नहीं करना है कभी. यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज गोइंग out as a vapor and whatever the amount of water is coming back as a condensed water. ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है. Steam which is coming out from the water, it can contain liquid droplets and gases also. Yes, definitely, because पानी में बहुत सारे gases हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, it is not necessary. Again, आपका कोई भी ट्रीटमेंट वो डिपेंड करता है चलता है, उसके बाद डेड होता है, फिर रीजनरेट करना पड़ता है. सिमिलरली हियर ऑल्सो, राइट, ऐसा ही हो सकता है. तो याद रखिए ये चीज को. अच्छा, जो इम्प्योरिटीज हैं, स्पेशली वी कॉल देम एज ए कार्बोनेट हार्डनेस, और वी कॉल इट एज ए टेम्पररी हार्डनेस. वी नो दैट व्हेन बॉयलर विल boil at 100 degree, 105 degree or 10 degree temperature, Celsius temperature, right, your all temporary hardness will get settled down by converting it in by getting converted into the carbonates. ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है. तो टेम्पररी हार्डनेस कैन बी इजीली रिमूव्ड इन बॉयलर, क्योंकि वो नीचे स्लज बन के बैठ जाएगी, उसको फिर निकाल देना है आपको धीरे धीरे करके. इट इज जस्ट लाइक अ सोडा, लाइम सोडा प्रोसेस. लाइम सोडा का प्रोसेस से ही पूरा बॉयलर का आइडिया पूरा अंदर इंप्लीमेंटेशन हुआ था, राइट. लेकिन व्हाट अबाउट दोज इंप्योरिटीज विच आर बेसिकली सॉल्यूबल, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस, राइट, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस, उसका क्या होगा फिर? वो इंप्योरिटीज को हम कैसे निकालेंगे? ओके, तो अगेन it is a chemical method you have to use. So
देयर मस्ट बी सम प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ फीड वाटर। फीड वाटर का मतलब होता है जो इनलेट वाटर जो हम बॉयलर में डाल रहे हैं, वो फीड वाटर मतलब इनलेट वाटर विच वी आर एक्चुअली pouring in this boiler, that is called a feed water for boiler। बिकॉज अगर ऐसा नहीं करेंगे, इसका हम सोल्यूशन नहीं लाएंगे, ये सारी चीजें रिमूव नहीं कर, देखो बॉयलर में अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर डालता हूं ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लम आएगी बताओ? इज इट रियली फिजिबल? इज इट रियली फिजिबल? बॉयलर का 5-50 एक एक बॉयलर 50-50 हजार लीटर लाख लीटर का पानी अंदर अकोमोडेट करता है, तो मैं क्या उसमें डिस्टिल वाटर डालूंगा तो मुझे तो बहुत अच्छा है, ये सारी चीजें निकल जाएगी, स्लज नहीं बनेगा, ये सारा टेम्पररी परमानेंट हार्डनेस नहीं होगा, सॉल्ट्स नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा मेरे को, तो बहुत बढ़िया है मेरे लिए, तो बहुत ही अच्छा है। यस विवेक, यू आर करेक्ट। आदित्य, यू आर ऑल्सो करेक्ट। इट विल बी वेरी कॉस्टली टास्क, क्योंकि पहले आप डिस्टिल वाटर बनाओ, उसका खर्चा करो, वो डिस्टिल वाटर को अल्टीमेटली तो आपको वेपर बनानी है, वेपर का बनाने के लिए आप फिर खर्चा करो, इट विल बी वेरी कॉस्टली टास्क। सो बेटर है कि जो पानी रेगुलर हमारे टेप में मिल रहा है, अवेलेबल है, राइट, हमको जो मिल रहा है पानी का लाइन सोर्स से, उसको यूज करो, उसको ट्रीटमेंट करो इन द सेम बॉयलर में, इंटरनल ट्रीटमेंट कर दो, स्लज वज जो बनता है नीचे बिठा दो, उसको निकाल दो। यस, इट इज नॉट अफोर्डेबल, राइट, इट इज नॉट अफोर्डेबल। रोल नंबर 50, बेटा आपका नाम नहीं दिख रहा है मेरे को, आपका प्रोफाइल मैंने लास्ट टाइम भी शायद बोला था आपको, राइट, हर बार मैं बोलता हूं जितने लोग मुझे अनडिफाइंड दिख रहे हैं प्लीज आपका नाम लिखिए अपना, ठीक है, क्योंकि मुझे अटेंडेंस लेनी होगी तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेरे आप लोगों की सारी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रही है सबकी, तो जिन लोगों का नाम नहीं दिख रहा है तो मुझे प्रॉब्लम आएगी। So, as steam is produced, dissolved solids become concentrated and deposits inside the boiler। चलो इसका मैं बहुत एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं आपको। कभी कभी हमने ये प्रैक्टिकली देखा होगा कि हम लोग जब पानी घर पे गर्म करते हैं ना पतीले में, तो पतीले के नीचे व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ जम जाता है, ऐसा देखा है कभी आप लोगों ने? आजू बाजू कॉर्नर्स पे या तो वॉल पे ऐसा सब डिपोजिशंस हो जाता है, पता है? तो दैट इज व्हाट, वो डिजोल्व सॉल्ट्स है, वो पानी गर्म होता है तो पानी उड़ जाता है, एंड बिकॉज पानी उड़ जाता है तो आपका क्या होगा, सॉल्ट्स उधर डिपॉजिट हो जाएंगे। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बॉयलर्स के लिए, बॉयलर की एफिशिएंसी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चलो एक आध दिन के लिए तो ठीक है, बहुत पतला लेयर बनेगा, लेकिन वी नो दैट बॉयलर इज बीइंग यूज्ड डेली एंड आई विल से 24/7, तो क्या होगा, दैट लेयर विल बिकम थिक एंड थिक, थिकर एंड थिकर, वो बनता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। होगा क्या, आपकी बॉयलर की हीटिंग, हीट ट्रांसफर जो एफिशिएंसी है, बिकॉज बॉयलर में पानी हीट कैसे होगा ये बताओ, सिंपल सी बात है, उसकी वॉल्स को हम गर्म करेंगे, पानी अपने आप गर्म हो जाएगा, इट मींस वी आर सप्लाइंग एनर्जी टू द वॉल्स इन विच हीटिंग एलिमेंट्स आर फिटेड, एंड दैट heat will be transferred to water। Now this water, between this water and that wall, between the water and wall, आपके बीच में ये कौन आ गया, एक लेयर आ गया सॉल्ट्स का, जो कि जम गया है, थिक हो गया है, इनसोल्यूबल है पानी में, और वो पूरा जम के सॉलिड हो गया है। वो लेयर होगा क्या, आपकी हीट ट्रांसफर जो स्पीड है, उसकी एफिशिएंसी है, that efficiency will be definitely affected, and because of that होगा क्या, जो मेरा 50 लीटर पानी एक मिनट में, अभी नया जब मेरा बॉयलर था 1 मिनट में हो जाता था, 50 लीटर पानी गर्म बॉईल हो जाता था, उसकी जगह अब वो 1 मिनट की जगह 1.5 या 2 मिनट लेना शुरू करेगा, धीरे धीरे 2 में से 3 मिनट होना शुरू होगा, उसके बाद धीरे धीरे 10 मिनट तक वो गर्म ही नहीं होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये बॉयलर में आती है। दैट्स व्हाई बॉयलर should be properly maintained। yes, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये सारी चीजें हुई तो होगा क्या, हीट ट्रांसफर पुअर होगा,
हीट ट्रांसफर पुअर होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा या फ्यूल ज्यादा यूज होगा. अल्टीमेटली योर ओवरऑल एक्सपेंसेस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड मोर. तो ये तो लॉस हो जाएगा ना भाई, अल्टीमेटली ये लॉस हो जाएगा, राइट. सो एक ये होता है पार्ट. और दूसरा पार्ट होता है कि कुछ गैसेस होते हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, ये सारे गैसेस होते हैं. वो भी आपका बॉयलर का एक दूसरा पार्ट है, वो कोरोजन. बिकॉज वी नो दैट बॉयलर्स जो होते हैं वो प्लास्टिक के तो बने नहीं होते, कांच के रख नहीं सकते, तो बनेंगे किसके? मेटल के. तो मेटल में कोरोजन का एक प्रॉब्लम आता है, मेटल में कोरोजन का एक प्रॉब्लम आ जाता है. और ये सारे प्रॉब्लम्स से लड़ने के लिए या उसको दूर करने के लिए वी हैव टू गो फॉर द बॉयलर फीड वाटर ट्रीटमेंट. अगर हम पानी जो, अच्छा ये सारी चीजों का जड़ कौन है? ये सारे प्रॉब्लम्स का जड़ कौन है बताओ? ये सारी चीजों का जड़ कौन है हमारा? ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही, इनलेट वाटर या फीड वाटर. अगर मैं फीड वाटर अच्छा डालता हूं तो बढ़िया है. अच्छा मेरे पास अवेलेबल नहीं है अच्छा वाटर, तो मैं क्या करूंगा? इट्स वेरी सिंपल दैट आई विल ट्रीट दैट वाटर एंड आई विल कन्वर्ट इट इनटू द हार्ड लेस लेस हार्डनेस और लेस सॉल्टी वाटर, so that my efficiency will improve. So in order to protect the boiler from all these contaminants, they should be controlled, removed, and you have to maintain the boiler properly by external or internal treatment, and that is your internal treatment is boiler treatment, right? Okay, problems जो है आपके क्या क्या आ सकते हैं? चलिए मजेदार चीज है ये, बहुत अच्छा पार्ट है. प्रॉब्लम्स इन बॉयलर. बॉयलर का प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक मुझे लग रहा है कि आज खत्म हो रहा है टाइम, इसलिए मुझे लग रहा है कि यहां पर रोकना पड़ेगा मुझे.